हाय गाइस, माय नेम इज रीगन एंड मेरे कennel का नाम रॉकलैंड केनल्स है और मेरे पास मल्टीपल डॉग ब्रीड्स अवेलेबल है मेरे पास। बट आई particularly I am a German Shepherd enthusiast, and apart from that I have Cane Corsos, Dogo Argentinos, Labradors, Shih Tzus and Dachshund. तो मल्टीपल ब्रीड्स है मेरे पास। आई also take my dogs to the shows. Now this female of mine, Ruby, she is a 12 months old dog और ये अभी शो जा रही है हाईकैन शो में। नवंबर 24 को शो है इसका। दिस डॉग इज माइटी, शी इज ट्रेन्ड फॉर रेस्क्यूइंग पीपल फ्रॉम ड्राउनिंग वाटर। वाटर में जो ड्राउन होते हैं लोग, उनको रेस्क्यू करने के लिए दिस डॉग इज ट्रेन्ड इन महाराष्ट्र। And I have another dog, Buzo. He'll be coming down shortly. He's gone for his training walk. He'll be coming down shortly. I'll show him also. He is also getting ready for the show. He's a 10 months old dog. 10 महीने का dog है वो। These dogs are highly obedient. ये dog ज़्यादा obedient dogs है, highly trainable dogs है। इनका IQ level बहुत ज़्यादा है। Dogs के family में these dogs are highly intelligent dogs. One of the best, top most intelligent dog है German Shepherds। इसके बाद आते हैं Dobermans। तो फर्स्ट है जर्मन शेपर्ड, हाईली ट्रेनेबल, हाईली ओबीडियंट और हाईली इंटेलिजेंट। नाउ अभी आप मेरे घर पे देख रहे हो कि there are so many dogs, they are how obedient they are and how peacefully they are sitting in with me. Okay, you have a lab in front of you, you have Buzo over here, you have a female German shepherd here, Mighty, Cane Corso है। I have one cage behind me and you can see the cage is open और उसके अंदर आपको स्काई बैठी है, एक और एक डॉग अर्जेंटिनो फीमेल that is sitting down. So I see, while you have multiple dogs at home, what people do is different cages में आप dogs डाल के लगा देंगे, उनके legs में fault आएगा, आपको legs में problem होगा। So I prefer keeping my dogs open. They roam around everywhere in my house, inside, outside. They are highly trained where they need to do potty, जो भी करना है उनका cleaning, maintenance and all. I do it personally without having anyone in the house. I and my wife, both of them do. Feeding का काम मेरी wife करती है and taking care of the dogs I do it personally. You can see them how beautiful and how well maintained my dogs are, with even with their body anatomy, उनका legs आप सब चेक कर सकते हो। एक भी डॉग के ऊपर आपको टिक्स नहीं दिखेंगे या फिर कोई मार नहीं दिखेगा। My dogs, they don't fight with each other. They are good in the house. So I, being the owner of the dogs, I make sure that I don't give the alpha leadership to any other dog in my house. I be the leader in the house and I take care of my dogs. Okay, I have a Cane Corso which is said to be a highly aggressive dog, but then I will tell you, this dog is such a humble and such a decent dog. Even if you leave a miniature dog, a toy dog in front of her, she will not attack the dog. She is very beautiful, a gentle giant, कोई भी कुत्ते को काटेगी नहीं। She is very peaceful with other dogs. And इसका सोशलाइजेशन हुआ है मेरे ही घर पर, बाहर नहीं। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड द एनवायरनमेंट दैट दे आर स्टेइंग इन। तो एक आदमी का घर कैसा है, उसके पास ओपन स्पेस है, वो अपार्टमेंट में रह रहा है, एंड दीज आर द थिंग्स दैट अ ब्रीड ऑफ डॉग सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन। सो बेसिकली जर्मन शेपर्ड्स आप कहीं भी पाल सकते हो, लेट दैट बी एन अपार्टमेंट, लेट दैट बी एन ओपन स्पेस, और फार्म हाउसेस रहने दो, आप किधर भी जर्मन शेपर्ड्स पाल सकते हो, लैब पाल सकते हो। एंड मीडियम साइज डॉग्स, पग हो गया, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, डॉबरमैन हो गया, ये डॉग्स आप अपार्टमेंट में पाल सकते हो इजीली। मिनिमल ग्रूमिंग है। जर्मन शेपर्ड स्टैंडर्ड कोट लोगे तो मिनिमल ग्रूमिंग है, लॉन्ग कोट लोगे तो थोड़ा ज्यादा ग्रूमिंग रहेगा आपको। सो मेरे पास ही घर पर अभी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स अवेलेबल है। ये है स्टैंडर्ड कोट वर्किंग टाइप डॉग और ये है लॉन्ग कोट शो पर्सपेक्टिव डॉग। हाँ, ये 10 महीने का डॉग है, रेडी हो रहा है शो के लिए अपने। इसका नाम है बुजो। ये है इंडियन चैंपियन ब्रैड का सन। ब्रैड इज अ इंपोर्ट डॉग, उसका बेटा है ब्रैड इनटू कीवी का सन, bred by Avish Shiva Prasad. So I have got this dog as a gift from him. I've got this dog as a gift from him, and I'll be taking him for the show. And having such a beautiful collection of dogs with me at home, मैं क्या बोलना चाहूंगा कि आज का दिन while I get calls, ऑनलाइन से देखकर लोग कॉल करते हैं, जस्ट डायल से कॉल करते हैं, डिफरेंट सोशल साइट से मुझे कॉल आते हैं या रेफरेंसेस के थ्रू भी कॉल आते हैं। सो पीपल टेल मी आई नीड अ जर्मन शेपर्ड डॉग फॉर 15,000, आई नीड अ जर्मन शेपर्ड डॉग फॉर 15,000 bucks। ये लोग बोलते हैं मेरे को 15,000 में जर्मन शेपर्ड चाहिए, मेरे को 20,000 में जर्मन शेपर्ड चाहिए। वो स्टैंडर्ड का डॉग आई डोंट ब्रीड। while I am telling you वो स्टैंडर्ड का डॉग, I will tell you what's the difference between the German shepherds that I have और वो स्टैंडर्ड का डॉग। 15,000 में जो जर्मन शेपर्ड आपको मिलेगा उसका आपको ब्लड लाइन नहीं मिलेगा, पेपर्स केनल्स क्लब रजिस्टर्ड नहीं होगा, एंड यू विल हैव नो हिस्ट्री ऑफ द डॉग।
उसके जो फॉल्ट्स हैं उसके फैमिली में, हिप डिस्प्लेशिया हो गया या फिर कोई लिवर माल फंक्शन हो गया या रिकेट्स का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स आपको मालूम नहीं पड़ेंगे। वाइल अब फॉर एग्जांपल ये डॉग है मेरे पास, आई हैव हिज पेपर्स विद मी, आई नो कि इसके ब्लड लाइन में कुछ जेनेटिक फॉल्ट्स नहीं है, एंड दैट इज हाउ आई ब्रीड दिस डॉग, आई ब्रीड माई डॉग्स, और यू विल गेट अ गुड क्वालिटी डॉग विद मी. So while I tell my customer that I'm giving you a dog for 25,000 or 30,000, I'm giving you a dog that is really of that value. 30,000 का ही dog मैं आपको दे रहा हूँ. While you go to verify outside also. And one more thing, while people approach me for buying a dog, I always tell them one thing. For example, I quote a price 25,000. That is with मैं सोचता हूँ कि भाई ये डॉग का वैल्यू है इतना मार्केट में, एंड देन आई कोट अ प्राइस. पीपल टेल मी भाई कुड यू प्लीज नेगोशिएट इट फॉर 20,000. ओके आई नेगोशिएट, बट कल के दिन मेरा डॉग बीमार होगा, यू विल कॉम्प्रोमाइज एंड नेगोशिएट ऑन माय डॉग्स हेल्थ, पपीज हेल्थ. So that's why I tell them, I'm sorry sir, I can't negotiate. You want, you take the puppy at this price or else you can leave. I'll keep the dog with myself. While an individual plans to buy a puppy, पहली बात आप ये दिमाग में लगा लीजिए कि आपके पास वो डॉग 10 से 14 इयर्स तक आपके पास रहने वाला है, और आप क्या आप ये डॉग को 14 इयर्स तक अपने पास रख सकते हो, ये चीज आप पहले माइंड मेकअप कर लीजिए. फिर सेकेंड थिंग है सिलेक्शन ऑफ द ब्रीड बेस्ड ऑन द एरिया एंड द एनवायरमेंट दैट यू आर गोइंग टू कीप योर डॉग इन. रिसर्च अबाउट द डॉग, आपको कौन सा डॉग चाहिए. अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, you can go for a lab, you can go for a pug, you can go for a toy pom, you can go for a dachshund. ऐसे breeds अपार्टमेंट के लिए suitable है. But then staying in an apartment, you plan for a Cane Corso, you will end up abandoning the dog in an year or two, and this is what I don't recommend. So select a dog that will suit in your environment. If you have open space, you can go for any dog. Toy breeds मत लीजिए, go for a medium size or a massive size dog. So based on the environment and based on your mind's capability, मतलब आप ये डॉग को मैनेज कर सकते हो. जर्मन शेपर्ड्स आर हाईली ट्रेनेबल. व्हाइल यू गो फॉर अ काने कॉर्सो, व्हाइल यू गो फॉर अ डॉगो अर्जेंटिनो, a pet parent's mind should be stable enough, should be वो उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये डॉग को मैनेज कर सके, बिकॉज ये डॉग्स एग्रेसिव है, ये डॉग्स थोड़े टाइम पे एडमेंट हो सकते हैं और थोड़े एग्रेसिव भी डॉग्स हैं, थोड़े टाइम पे ये डॉग जिद्दी भी होते हैं. ओके, सो एक पेट पेरेंट को माइंड मेकअप करना चाहिए कि मैं ये डॉग को रख सकता हूं या नहीं, क्या मैं ये डॉग का लीडर बन सकता हूं. नहीं, कल का दिन ये हो गया कि आपका डॉग आपको चैलेंज कर रहा है एंड यू स्टेप बैक फ्रॉम योर डॉग विल अटैक ऑन यू. यू बीइंग द ओनर आल्सो, योर डॉग विल अटैक ऑन यू. फूड एग्रेशन इश्यूज आएंगे आपको, फिर रिसोर्स गार्डिंग का इश्यूज आएगा आपको. ये सब चीज ये डॉग्स में कॉमन है. काने कॉर्सोस हो गए, डॉगो अर्जेंटिनोस हो गए, पिटबुल हो गए, ये ब्रीड्स में कॉमन है. बट देन व्हेन यू गो फॉर जर्मन शेपर्ड्स, अगर आप यू आर टेकिंग अ गुड लाइन डॉग, आपको फुट टेम्परमेंट इश्यूज नहीं आएंगे, biting issues नहीं आएंगे. Your dog will be a gentle giant in your house. For example, both my dogs that are there in the house, I can leave them inside the house, bolt my door and go anywhere and come back, and I can be sure that my dogs will not destroy anything in my house. But ये dogs में वो common है. So be aware while you are on selection of the breed that you are taking. भी normally होता ये है कि while एक pet parent या फिर एक potential pet parents approaches a breeder, I need a dog, I need a Rottweiler in my house. तो ब्रीडर का अप्रोच ये होना चाहिए कि वो पेट पेरेंट को पूछे कि भाई आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, इंडिपेंडेंट हाउस है आपका, डू यू हैव अ लॉन आउटसाइड. बेस्ड ऑन दैट गिव योर ओनर सजेशन, आपको कौन सा डॉग चाहिए. यू वांट अ डॉग दैट अ फैमिली डॉग जो आपके फैमिली में मिलजुल कर रहे. यू वांट अ गार्ड डॉग दैट नीड्स टू गार्ड योर हाउस. आपका रिक्वायरमेंट है क्या. तो फर्स्ट ब्रीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वेरीफाई फ्रॉम योर पोटेंशियल पेट पेरेंट कि आपको चाहिए क्या डॉग में, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ट्रेट्स, नॉट द डॉग ब्रीड. आपका घर कैसा है, आपके एनवायरनमेंट में ये डॉग सेट होगा या नहीं होगा, सजेस्ट. आपके पास अब नॉर्मली अपने पास ये चलता है कि जो भी ब्रीड हमारे पास है मैं चिपका देता हूँ. भाई मेरे पास जर्मन शेपर्ड पपीज अवेलेबल है, मैं जर्मन शेपर्ड चिपका देता हूँ सामने. दिस इज नॉट हाउ अ ब्रीडर शुड बी. अभी मेरे पास शिट्जू डॉग्स है घर पे, बट देन गए नहीं तो आई विल कीप देम फॉर माई सेल्फ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बट एक ब्रीडर शुड गाइड द पोटेंशियल पेट पेरेंट इन सच अ वे कि कल के दिन उसको ये अबैंडनिंग का प्रॉब्लम नहीं आना है. डॉग में घर पे लेके गया कुत्ता, 2 साल रखा लिया, नहीं हो रहा मेरे से देखने के लिए, टीवी फूट गया मेरा घर में, घर डिस्ट्रॉय करा डॉग, मैं दे देना चाह रहा हूँ. ये इश्यूज बहुत कॉमन है एंड आई हैव सीन दिस अ लॉट. द ब्रीडर शुड गाइड अ पेट पेरेंट कि ये डॉग आपके लिए सुटेबल है, आप ये लीजिए. गो टू परचेस अ डॉग फ्रॉम अ ब्रीडर.
एक ब्रीडर को पता होगा कि ये पपी का मदर कौन है, फादर कौन है, उसमें फॉल्ट्स क्या है, सब पता होगा, वो आपको गाइड कर सकेगा। व्हाइल यू गो टू अ पेट स्टोर एंड बाय अ डॉग, पेट स्टोर में होता क्या है कि दीस पीपल दे सोर्स द डॉग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, ये बेसिकली रीसेलर्स है, दे बाय इट फ्रॉम अ ब्रीडर और मे बी एन इंडिविजुअल, किसी के घर पे बच्चे हो गए डॉग्स, ये लोग जाते हैं उनसे कम से कम में खरीद कर पेट स्टोर में डिस्प्ले करके ये डॉग्स बेचते हैं। So okay, there are few good reputed pet stores also who will give you the background also. ये mother है, ये father है, ये बतलाते हुए with the history they'll give you. But there are many unauthorized and कैसा बोलूं मैं, अनएथिकल पेट स्टोर्स। हाँ, बहुत सारे अनएथिकल पेट स्टोर्स है जहां पर वो लोग डिस्प्ले में जो डॉग्स डालते हैं, दे सोर्स इट फ्रॉम समवेयर एंड दे सेल इट, एंड एंडिंग ये होता है कि यू एंड अप टू बाई अ पेयर जो ओन ब्रदर एंड सिस्टर है, एंड दे विल मेट इन योर हाउस, यू विल गेट द पपीज एंड यू अगेन सेल डॉग्स, और वहां पे क्वालिटी डॉग का मार्क आता है। सो इट्स बेटर दैट यू गो टू अ ब्रीडर, गो चेक द पेरेंट्स, मदर एंड फादर को देखो ब्रीडिंग के, या उनके पास खाली मदर है तो मेल का मीटिंग का वीडियो देखो आप उनके पास से, उसके बाद में पपी सोर्स करो। या आपको ब्रीडर गाइड कर सकता है कि भाई ये जेन्युइन ब्लड लाइन का है, आई गारंटी यू द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड, देन ओनली टेक इट। सजेशन फ्रॉम माय एंड टू द पेट पेरेंट्स वुड बी, व्हाइल यू go to buy a dog, a puppy, you go there, spend some time with the puppy, maybe an hour, 2 hours, spend that time with the puppy। ब्रीडर को बोलिए कि भाई ये डॉग को फीडिंग दीजिए, मेरे सामने चेक कीजिए कि वो फीडिंग कर रहा है या नहीं। उसके बाद में आप ये भी चेक कर सकते हो उसका पूप पॉटी स्टूल कैसा है, हार्ड है, लूज है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द पपी। एक उसका स्टूल प्रॉपर है और उसका फीडिंग इनटेक प्रॉपर है, डॉग इज एक्टिव, यू कैन गो फॉर द पपी, यू कैन टेक इट, दैट्स इट। ये हेल्थ इश्यूज डॉग का इसमें ये हो जाएगा, बट क्वालिटी वाइज ओनली अ ब्रीडर कैन गाइड यू कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, दैट्स इट। हेल्थ वाइज दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू चेक, स्पेंड 2 hours विद द डॉग पपी, उसका ईटिंग देखिए, उसका एक्टिविटी चेक कीजिए, एंड देन उसका स्टूल, हार्ड स्टूल है, यू कैन इजिली गो फॉर द डॉग, उसका हेल्थ अच्छा है, दैट्स इट। ब्रीडर आई हैव suggested you few points for the betterment of the pet owner, and I would like to conclude the video. These are the points from my end that would be beneficial for you as a pet owner, going potential pet owner. And thank you Mahesh for coming down and shooting this video in my house. I'm very glad that you were here and coming down to my house and displaying all my dogs. And I would like to tell the viewers to subscribe to Pets World YouTube channel of Mahesh, because he is doing a lot to guide you people around. Done. Thank you Mahesh, you can conclude the video.